شہر اور خبر میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں عینی خان۔ رخ کریں گے پنجاب کا۔ میاں والی سے راولپنڈی جانے والی بس فتح جنگ انٹرچینج کے قریب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 12 افراد زندگی کی بات سے ہار گئے، جبکہ 15 افراد وہ زخمی ہو گئے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سی پیک فتح جنگ انٹرچینج کے قریب مسافر بس حادثے میں معصوم بچی ذاتی طور پر محفوظ رہی۔ اس کی والدہ جاں بحق ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ڈرائیور بس پر کنٹرول نہ کر سکا۔ حادثے کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے گوجرانوالہ زون کی یونان کا اشتہار سے ملوث انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائیاں، 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے کے ہدایت پر ایف آئی اے نے گوجرانوالہ، گجرات کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد شفیق، عصمت علی، خضر حیات، مرزا سکندر، محمد نواز، شاہد امین، شہزاد یوسف، ظفر اقبال اور اسد عباس کے نام پر ہوئی۔ ترجمان کے مطابق ملزمان نے سادل اور شہریوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے کے بدلے بھاری رقم وصول کی۔ ان میں سے کچھ ملزمان یونان اور لیبیا کشتی حادثے میں ملوث، جن میں معصوم بچوں کا اغوا اور ان کو بیرون ملک بھجوانے کا الزام بھی شامل ہے۔ گوجرانوالہ کے علاقے وزیر آباد میں موٹر سائیکل سوار 4 افراد ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ پختو پل وزیر آباد کے قریب پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چاروں افراد محنت منظوری کے لیے موٹر سائیکل پر سوار وزیر آباد سے گجرات جا رہے تھے۔ سبزی منڈی کے قریب ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے۔ چوک سرور شہید میں چانڈیا چوک کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ چانڈیا چوک کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر پر سوار ایک بچی اور ایک خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گوجرا تھانہ صدر گوجرا کے علاقے میں موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں جاں بحق اور زخمی افراد موٹر سائیکل پر سوار گوجرا سے گاؤں جا رہے تھے۔ مونگی بنگلہ روڈ پر مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں تینوں موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کے جوان موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا، جہاں شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے طلحہ جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے متوفی کی لاش تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی۔ کوٹ ادو میں شدید دھند کی وجہ سے تیز رفتار مزدا اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان تصادم۔ حادثے کے نتیجے میں مزدا اور ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ شدید دھند کے باعث تھانہ سناما کے حدود لنگر سرائے روڈ پر ٹریفک حادثہ۔ تیز رفتار مزدا اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں مزدا ڈرائیور جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے لاش اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا۔ سمڑیال میں ڈاکو نے ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو گولی کا نشانہ بنا کر ابدی نیند سلا دیا۔ ڈاکو نے گزشتہ روز بیگووالا کے علاقے مگو کما میں اپنے بھائی کے ساتھ رحمان علی کو لوٹ مار کے غرض سے روکا، جس پر دونوں بھائیوں نے مزاحمت کی۔ اس دوران ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی۔ ایک گولی 28 سالہ رحمان علی کو سینے پر لگی، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ ڈاکو موقع سے فرار۔ پولیس نے مقتول کے بھائی قربان علی کی درخواست پر 3 نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقتول 4 بچوں کا باپ تھا، جس کی 15 روز قبل 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سرکل سمڑیال کی پولیس ڈاکوؤں کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی ہے، جو پے در پہ ڈکیتیاں کر کے شہریوں کو مال سمیت جان سے بھی محروم کرتے جا رہے ہیں۔ چوک سرور شہید میں دکانوں پر چوری کی بڑی وارداتیں، لاکھوں روپے کی نقدی اور سامان چرا لیا گیا۔ 3 مسلح ڈاکوؤں کو سی سی ٹی وی ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ شہر کے این بس میں چوری کی 3 بڑی وارداتیں ہوئیں، جس میں 2 کریانہ سٹور اور 1 پلازے پر چوری کی واردات شامل۔ اس دوران 3 مسلح ڈاکو لاکھوں روپے نقدی چوری کر کے لے گئے، جبکہ تاجر کہتے ہیں 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس تاخیر سے پہنچی۔ تاجروں کا کہنا ہے اگر چوروں کو نہ پکڑا گیا تو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ پولیس نے باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے چوک سرور شہید میں پہلے بھی 2-3 وارداتیں ہوئی ہیں، 2-3 وارداتیں ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کہ یہ پولیس یہ انتظام نہیں کرتی، یہ انہی کا قصور، زیادہ ان کا مسئلہ ہے۔ جو بھی ہمارے متعلق جتنے بھی افسران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ فی الفور اس چیز کو کنٹرول کیا جائے، ورنہ ہم مکمل ہڑتال کرنے پہ تیار ہیں۔
اور کوئی انتظار نہیں کریں گے. جیسے دوستوں نے بتایا ہے کہ 15 پہ کال کی ہے اور ابھی تک کوئی آدمی یہاں آیا نہیں ہے. سر ہم آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ فوری حل کیا جائے. چوریوں کی وارداتیں اب چھتیں یہ ہر چیز جو ہے نا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی حل نکلے اس کا. ہم جو ہے نا یہ انجمن تاجران مکمل طور پر ہڑتال کریں گے. کبیر والا میں انتظامیہ نے 2 کروڑ سے زائد مالیت 58 کنال اور 2 مرلے کا سرکاری رقبہ قانونی ایکٹ کی دفعات 32 اور 34 کے تحت ناجائز قابضین سے واگزار کروا لیا، جس پر سڑک بنائی جا رہی ہے. مقامی لوگوں کے مطابق تقریباً 21 سال سے ناجائز طور پر قبضے میں موجود سرکاری زمین کو تحصیل انتظامیہ نے خالی کروا لیا اور اب یہاں ایک سڑک کا تعمیراتی کام شروع کر دیا. اس سے ہماری 3 یونین کونسل کے لوگ بہت خوش، کیونکہ اس سے قبل ہمیں اجناس کی نقل و حمل، بچوں کو اسکول لے جانے اور شہر جانے میں مشکلات کا سامنا. اب اس سڑک کی تعمیر سے ہمارے علاقے میں ترقی ہوگی اور ہماری روزمرہ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ جڑا رستہ جڑی یہ پروپیگنڈا بنایا گیا ہے اس واگزاری دا، اس دے اتنے اساں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان دے مشکور ہیں جنہاں نے یہ رستہ 21 سالاں تو جڑا ڈٹھا پیا جن دے وچ اساں زندگی ساڈی اجیرن بن چکی ہے. اتنے ساڈا نہ رستہ ساڈا گزرنا ہی ہو سکتا، ساڈے سکول بچے نہ جا سکتے، اساں ہسپتال نہ سے جا سکتے. گورنمنٹ نے جڑا یہ اقدام کیتا ہے یہ 20 سال تو یہ موضع چک والی دات بڑے پریشانی چائی، رستہ کوئی نہ آئی اس موضع دا. تے ایک ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، تحصیلدار صاحب اور علاقے دے جڑا نویں شہر دا SHO آئے انہوں نے بڑا اچھا کام کیتا ہے. اپنی نگرانی کھڑو کے یہ رستہ واگزار کرائے نے یہ جڑے لوگ قابضین ہیں. بھونگ پولیس نے اپنی عدالت لگا لی، قتل کے مرکزی ملزم سمیت ساتھی بھی چھوڑ دیے. 302 کے نامزد ملزمان چھوڑنے پر ورثہ کا شدید احتجاج، پولیس پر بھاری رقم لینے کا الزام لگا دیا. آپ کو بتائیں غازی آباد کے رہائشی محمد اصغر کو 4 ماہ قبل فائر مار دیا گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گیا. پولیس نے تھانہ بھونگ میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. ورثہ نے الزام لگایا کہ پولیس نے بھاری رشوت کے عوض ملزمان کو چالان کرنے کی بجائے چھوڑ دیا، جبکہ ورثہ کو پولیس دلاسے دیتی رہی کہ ملزمان کو چند روز کے لیے کسی سفارش پر چھوڑا، دوبارہ گرفتار کریں گے. جبکہ انکوائری میں بھی ملزمان قاتل ثابت ہو گئے، لیکن پولیس ابھی تک لیت و لال سے کام کر رہی ہے. ورثہ نے اعلی حکام سے ملزمان گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے غیر معیاری مٹھائی بنانے والی دکانوں کے خلاف کارروائی کر دی، جس پر مشتعل افراد نے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا. ان سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی. شاہ جمال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مٹھائی بنانے والی دکان کے خلاف کارروائی کی. شہریوں نے اہلکاروں کو محصور کر لیا. مشتعل افراد نے سرکاری گاڑیوں کو روک کر موبائل فون اور قیمتی سامان چھیننے کی کوشش کی. بیکری کے مالکان اور ان کے ساتھیوں نے ٹیم کو زدوکوب کیا اور گالم گلوچ کی. دوسری طرف شاہ جمال کے احمد موہانہ چوک پر درجنوں افراد نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے خلاف احتجاج کیا. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کو زدوکوب کرنے والے 10 افراد کے خلاف تھانہ شاہ جمال میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تحصیل ساہیوال میں مردہ گوشت کا بیپاری مقامی تھانوں اور پیٹرولیم پولیس کی نظر سے بچ کر شاہپور صدر جا پہنچا. مردہ گوشت کی بیپاری کے پاس 5 من مردہ گوشت موجود تھا. تحصیل ساہیوال کے اداروں کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث ساہیوال سے بچ کر نکل جانے والے مردہ گوشت کا بیپاری شاہپور صدر میں دوران ناکہ بندی ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا. مردہ گوشت فروخت کرنے والے بیپاری کو پیٹرولیم پولیس شاہپور صدر نے گرفتار کر لیا. دونوں ملزمان کا تعلق تحصیل ساہیوال کے نواحی علاقے نہنگ سے ہے، جبکہ دونوں نامزد ملزمان کے خلاف تھانہ شاہپور صدر میں مقدمہ درج کر کے تفتیش اور مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. چنیا میں سال 2024 میں جرائم کرائم کی شرح انتہائی بلند رہی. سرکل بھر کے تھانوں میں 13,000 مقدمات درج ہوئے، جبکہ تھانہ لبات میں 400 کے قریب موٹر سائیکل چوری، 500 چوری ڈکیتی اور 200 رابری کی مقدمات درج ہوئے. پولیس شہریوں کو ریکوری دینے میں پورا سال ناکام رہی. شہریوں کی آج پنجاب سے ریکوری لینے کی اپیل. مزید جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز مہر وقار انور سے. میں موجود ہوں چونیا کے نواحی علاقہ تھانہ الہ آباد کے باہر. یہاں پر جو سال 2024 ہے وہ اپنے اختتام کو ہے اور شہر بھر میں اب تک کتنی شہریوں کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہیں اس میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے. یہاں پر تھانے میں اب تک جو ہے وہ شہریوں کو کتنے فیصد جو ہے ریکوری ملی ہے، اسی والے سے بات کرتے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر کوئی شہری موجود ہے. بائک 2024 میں چوری ہوئی تھی. میں نے تھانے میں اپنی FIR کروائی اور کروا کر میں نے سال بھر وہ نہ پورا مجھے نہ چکر جو نہ لگاتے تھک گیا ہوں. میری نہ موٹر سائیکل جو نہ ریکور نہیں ہو سکی. سرکل چونیا میں الہ آباد تھانہ سب سے بڑا تھانہ ہے جرائم کرائم کے حوالے سے. یہاں پر
जो चोरी डकैती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस साल तकरीबन 3100 के करीब थाना इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिनमें से 500 के करीब चोरी डकैती के मुकदमात हैं, 210 रॉबरी के हैं, और इसी तरह मोटरसाइकिल चोरी के जो 400 के करीब मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें अभी तक पुलिस ने साल मुकम्मल हो गया, किसी को रिकवरी नहीं दी। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि पूरे साल में जितने भी यहाँ पर मुकदमात दर्ज हुए हैं, हमें किसी किस्म की कोई भी रिकवरी नहीं मिली। और यहाँ पर जब साल का इख्तिताम होता है तो पंजाब पुलिस की जानिब से यहाँ पर उन मुकदमात को जो है अदम पता कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा साल उनको लॉलीपॉप दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि आईजी पंजाब फौरी नोटिस लेकर हमारे जो मुकदमात हैं इनकी रिकवरी करवाए। जी, न्यू मरी तसेर ग्राम बगला रोड अरसा 10 साल से इल्तवा का शिकार। इस रोड का काम 2016 में शुरू किया गया था, जो आज तक मुकम्मल ना हो सका। आपको बताएं, न्यू मरी तसांज भम रोड सईदा रोड 2 फेज पर मुश्तमिल है और 2 अलग अलग ठेकेदारों के पास टेंडर हैं। ये रोड मुकम्मल होने से पहले ही कदीमी खंडरात में बदल चुकी इस रोड का मटीरियल 2 साल से रोड के किनारों पर पड़ा जाया हो रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं। महकमे पंजाब हाईवे का कहना है इस रोड की फाइल गुज़िश्ता दौर हुकूमत में ADP ने निकाली, जिसकी वजह से इस रोड का काम आज भी इल्तवा का शिकार और इस रोड से मुल्क आबादी सख्त परेशान है। ABN न्यूज की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने चीचावतनी में मुर्तजा शहीद पार्क की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज ABN न्यूज ने इंतजामिया की तवज्जो दिलाने के लिए खबर नशर की, जिसमें निशानदही की गई कि चीचावतनी के सबसे बड़े मुर्तजा शहीद पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। पब्लिक वॉशरूम भी गंदगी की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, जिस पर अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। ABN न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल ने अहकाम जारी करते हुए चीफ ऑफिसर बल्दिया चौधरी परवेज अख्तर गुज्जर और सब इंजीनियर मलिक आशिफ की जेर निगरानी फौरी तौर पर मुर्तजा शहीद पार्क की सफाई सुथराई का काम शुरू करवा दिया, जिस पर चीचावतनी के शहरियों ने इंतजामिया के ऐसा अमल को सराहा। चिन्योट में वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की तरफ से खुली कचहरी का एहतमाम। खुली कचहरी में शहरियों ने मसाइल हल करवाने के लिए कसीर तादाद में शिरकत की है। लोगों के मसाइल काफ़ी होते हैं जिनको हल करने के लिए बेहतर से बेहतर जो है कोशिशें की जाती हैं और उसको हल भी करवाया जाता है। आज ये देखें आप, जो सर्दी का मौसम है तो उस पर रज़ाइयों की तकसीम है, तोहफा दिया जा रहा है ख़वातीन को और मुस्तहिकीन की हेल्प की जाती है। हेड सलमान की और गिरतुमा में आम शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबके और किसानों ने महंगी बिजली के बिलों से जान छुड़ाने के लिए अपनी मशीनरी और जरी ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए। हेड सलमान की में बिजली के घरेलू सारिफ और कारोबारी तबके किसानों ने बिजली की महंगाई की वजह से अपनी मशीनरी आटा चक्कियां और किसानों ने अपने जरी ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करके महंगी बिजली से जान छुड़ा ली। किसानों का कहना है हुकूमत सोलर पैनल पर मजीद सब्सिडी फराम करे तो ज़राअत के लिए ऐसा इकदाम होगा और मुल्क की मईशत को सहारा भी मिलेगा। सरसों के तेल में पकी मछली सियालकोट की सौगात बन चुकी। शहरियों ने मछली खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं जफर वसीम से। जी बिल्कुल जी, मौसम सरमा की आमद के साथ ही मछली का सीजन भी शुरू हो जाता है और खसूसन मौसम सरमा का आगाज हो और बारिश भी हो और सियालकोट के वहाँ मछली खाने से पीछे रह जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। इस वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी जारी है और जो है शहरी जो है वो मछली की दुकानों का रुख कर चुके हैं। मछली के रेट तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए, पर हमारे पास काफ़ी सारे रेट कम है मछली के। तो वैसे तो डॉक्टरों से जाने से बेहतर है कि आप लोग मछली इस्तेमाल करें, तो ना ही आप लोगों को बीमारी लगेगी। वैसे भी तो आपको पता है जो बड़ा गोश्त वगैरह होता है उनमें तो काफ़ी सारी बीमारी होती है, मछली में कोई बीमारी वगैरह नहीं। तो अच्छे से अच्छे हम सरसों में तेल में इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो विटामिन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर के सियालकोट की खास सौगात सरसों के तेल में पकी मछली है कि जिसकी महक से पूरा शहर जो है वो इस वक्त जो है वो महक रहा है। और सियालकोट के शहरी जोक अपने दोस्तों बाप के साथ और फैमिलीज के साथ जो है वो मछली की दुकानों का रुख कर चुके हैं। सर्दी की वजह से इस साल बहुत ज्यादा जा रहा है, मगर फिर भी मछली सस्ती है क्योंकि आजकल डॉक्टर्स के खर्चे काफी ज्यादा है, डॉक्टर की फीसेस और मेडिसिन पर काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। और मछली क्योंकि मैदा और जिगर के लिए काफी ज्यादा मुफीद है, तो मछली खानी चाहिए हर शहरी को, चाहे थोड़ी खाए चाहे ज्यादा खाए, मगर खानी चाहिए। जहाँ पर के वो सरसों के तेल में पकी हुई मछली से लुत्फअंदोज हो रही है। और यहाँ पर ये भी बात बताना चाहूँगा कि मछली की फरोख्त से न सिर्फ के मछली फरोशों का कारोबार चमकता है, बल्कि के उससे मुल्का दीगर कारोबार, मतलब रोटी का कारोबार, मसाले का कारोबार, वो दीगर कारोबार भी जो है वो भी साथ में चल जाते हैं।
लिहाजा सियालकोट जब भी आए तो सरसों के तेल में पकी मछली जरूर ट्राई करें जी। अब रुक करेंगे गुजरांवाला का, जहां पे शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा राणा जावेद महमूद मछली पॉइंट पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मछली पॉइंट पर मौजूद हूँ। बात करें तो मछली के हवाले से 2 दिन हो चुके हैं, सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। शहरी और फैमिलियों ने मछली पॉइंट का रुख कर लिया है, जहाँ गर्मा गर्म मछली खाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ की मछली काफ़ी लजीज है, यहाँ पर काफ़ी रश बना रहता है। इस वक्त शॉप ओनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सर यहाँ पे रश बना रहता है, मछली इतनी लजीज क्यों है, क्या वजह है? जी ये ना खालिस सरसों के तेल में तैयार की जाती है, जिससे इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। ये इस्लामाबाद तक से लोग, सियालकोट, लाहौर, काफ़ी शहरों से लोग हमारे पास मछली खाने आते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ होती हैं, एक स्पाइसीज होती हैं, स्पाइसी होती है यानी कि एक नॉर्मल नेचुरल टेस्ट वाली होती है, यानी कि लोग बहुत पसंद करते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने शॉप मछली ऑनर की बात सुनी, उनका कहना था कि ये मछली सरसों के तेल में तैयार की जाती है, तब इसका जायका और मज़ीद लजीज हो जाती है। यहाँ से दूर दराज से यहाँ पे शहरी अपनी फैमिली के साथ मछली खाने के लिए यहाँ पर रुख करते हैं। जी हवेली लखा सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही दरिया सतलुज की ताज़ा मछली की मांग में इजाफा। हेड सुलमानकी पर दरिया सतलुज की ताज़ा मछली जायके के लिहाज से बेहतरीन है। शहरी दूर दराज इलाकों से फिश पॉइंट का रुख करते हैं और सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए लजीज मछली खाकर एंजॉय करते हैं। अंसर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। दरिया सतलुज की मकबूल मछली शॉप्स पर शहरियों का रश बढ़ जाता है। सर्दी का मुकाबला करने के लिए कोई दोस्तों के साथ मछली का मजा दुबाला करने लगा, तो कोई पार्सल ले जाकर अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करने में मसरूफ है। हेड सुलेमान की ताज़ा मछली, भाईजान मच्छी खाना है ना आपने, कोई हर वक्त मछली हेड सुलेमान की मिलती दरिया दी। शहरियों का कहना है कि दरिया सतलुज की ताज़ा मछली पूरे पंजाब में मशहूर है और हम दूर दराज से यहाँ हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरिया किनारे ताज़ा मछली खाने के लिए फैमिलीज और दोस्तों के साथ आते हैं। दरिया सतलुज की मछली रहू, सोल, कैट और चीड़ा मछली स्पेशल मसाला जात के साथ सरसों के तेल में तैयार की जाती है। हवेली लखा के जिंदा दिल लोग दोस्तों के साथ मछली और गपशप का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अगर आपने सर्दियां एंजॉय करनी है तो ताज़ा मछली खाने के लिए दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी का रुख करें। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फूलनगर में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी के लिए ड्राई फ्रूट खरीदना मुश्किल हो गया। नासिर इकबाल खान की रिपोर्ट देखिए। फूलनगर में भी मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल और मांग बढ़ जाती है। फूलनगर के मेन चौराहों, गली मोहल्लों और मेन रास्तों पर दुकानों और रेडियों पर खुश्क मेवा जात तो सजा दिए गए हैं, लेकिन शहरियों की कुव्वते खरीद से बाहर है। पिछले साल रेट बहुत कम थे, इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा है, जो आम ग्राहक की पहुँच से दूर है। इसलिए मरीम नवाज़ से अपील है, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से अपील है, इनका नोटिस लिया जाए और रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आवाम भी खा सके। पिछले साल रेट घट सी, ऐरी रेट बहुत ज़्यादा हो गए तो गाहक को नहीं है, बड़े परेशान है, माल स्टाक होया पिया। असी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला नूं अपील करने पे रेट घटाए जाना। ड्राई फ्रूट के शौकीन शहरियों का कहना है कि वो सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी भी इसी से की जाती है। ताहम कीमतों में इजाफे के बायस इनसे ड्राई फ्रूट खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन नवीद भट्टी के साथ नासिर इकबाल, ABN न्यूज़, फूलनगर। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मनमोहन सिंह का ताल्लुक जगवाल के नवाही गांव गाहत से था। उनके इंतकाल पर वहां के मकीन भी रंजीदा हैं। कैसर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। इनका ताल्लुक चकवाल के नवाही गांव से था। मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन इनकी यादें इस गांव और यहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आज भी रजिस्टर पर दर्ज इनके नाम की सूरत में मौजूद हैं। मनमोहन सिंह जब भारत के वज़ीर आज़म बने तो अपनी जाए पैदाइश को ना भूले। गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स और मॉडल विलेज समेत गांव तक आने वाली मेन शाहराह की तामीर करवाई। इनके हम जमात साथी राजा मोहम्मद अली, जिनका इंतकाल कुछ अरसे कबल हुआ, इनके रिश्तेदार भी मनमोहन सिंह के इंतकाल पर रंजीदा हैं। मनमोहन सिंह ने अपने गांव में इब्तदाई तालीम हासिल की। आज भी स्कूल के रिकॉर्ड में इनका नाम मौजूद है। मनमोहन सिंह के बचपन के दोस्त मोहम्मद खान भी अपनी यादें कुछ यूं बयान करते हैं। बहुत धन्यवाद जमाती है, संगत साड़ी खेलने हो, सारे करने हो,
सारे बहुत बहुत उसे साढ़े वास्ते कोशिश की हर गल्ला दी मोहन सिंह हो बहु अच्छे हो जल्दी जल्दी अच्छा कहाँ इतनी उम्र थोड़ी है। लोग चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। आज वो हमें नहीं है, उनकी यादें हमारे साथ हैं। जो कुछ उन्होंने हमारे गांव के लिए किया हम उनके एहसान मान दें। गिनवाना शुरू करो तो बहुत लंबा किस्सा है, लेकिन उनके इन कारनामों की वजह से आज हमारा पूरा गांव उनके सोग में बराबर का शरीक है। गांव के बासी यहाँ के मुन्ना और भारत के मनमोहन सिंह के इंतकाल पर शदीद रंजीदा हैं। इनका कहना है कि 100 कॉलम जहाँ सरहद के उस पार है, इससे कहीं ज्यादा यहाँ पे है। साल महंगाई के चक्के में पिसे अवाम की हालत न बदल सकी। मौसमी सब्जियां हों या फल, अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर 2024 भी पूरा गुजर गया। इसमें क्या सूरत हाल रही, देखते हैं सैयद माजिद अली शाह की इस रिपोर्ट में। 2024 में महंगाई बेकाबू रही। 2024 में अशिया खरीदोनोश की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ, जिससे अवाम को रिलीफ ना मिल सका। सारा साल महंगाई रही है, अवाम ने तो कोई सौख ही नहीं होया। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਟਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और लोगों का ये कहना था कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, जबकि हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। 2025 की आमद पर भी हुकूमत को कंट्रोल करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस के पहले साल की तरह इस साल भी मुतवक्का है कि महंगाई में कमी ना आएगी। कैमरामैन अजान अली के साथ सैयद माजिद अली शाह, ABN न्यूज़, कहना। साल 2024 अपने अख्तिताम की जानिब गामजन, मगर रिनाला खुर्द तहसील भर की अवाम आज के जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात से अभी तक महरूम। सियासतदानों के दावे सिर्फ दावों के हद तक हैं, जबकि शहरी आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चौधरी मोहम्मद अवैस ने रिपोर्ट तैयार की है। साल 2024 अपने इख्तिताम को है। साल बदल गया मगर ना बदली रिनाला खुर्द की अवाम की हालत जार, जो आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल में सहूलियात का फुकदान। डायलिसिस यूनिट को बने 2 साल बीत गए, लेकिन अभी तक फाल ना हो सका। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टाफ बंद कर दिया गया। मुसाफरों से सस्ती सफरी सहूलत भी छीन ली गई। तहसील का दर्जा रखने वाले शहर का तफरीही पार्क अदम तवज्जो के बाइस खस्ता हाली का शिकार है। शहर की सड़कें भी, जिनमें चूचक रोड, हबीबाबाद, पीर दी हट्टी रोड, शेरगढ़ रोड, हबीबाबाद और मुतअद्दिद दही इलाकों की सड़कें टूट फूट का शिकार और निकासी आब का निज़ाम दरम बरम है। रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला किसान की फसलों के मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से रुल गए हैं। शहर की मलिका आबादियों में आज इस जदीद दौर में भी सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है। सड़कें जो है वो हमारी जो है वो सारी की सारी टूट फूट का शिकार है। सैकड़ों देहात पर ये मुश्तमिल जो है ये रिनाला खुर्द की तहसील है, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम जो है वो ना होने के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि 2025 का जो साल है वो इंशाल्लाह इन मसाइल का हल ज़रूर लेके आएगा। बुनियादी सहूलियात से महरूम रिनाला खुर्द तहसील भर की अवाम आने वाले नए साल में शहर की बेहतरी खुशहाली के लिए पुरउम्मीद दिखाई देती है। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला खुर्द। गुजर खान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन को कई मसाइल का सामना। बिजली का ट्रांसफार्मर गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया और फंड्स की कमी के बाद टेलीफोनिक निज़ाम भी बंद है। आपको बताएं, कॉलेज का ट्रांसफार्मर फनी खराबी के सबब खैरफाल। नए ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए एस्को की जांच से तखमीना जमा करवाना मुमकिन नहीं। साबिक हुकूमत ने 3.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी थी, जिनमें से 2 करोड़ 75 लाख का मंसूबा 5 कमरों की तामीर के लिए शुरू किया गया, लेकिन वो मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल ना हो सका। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 15 दिन में काम मुकम्मल करने का अंदिया दिया, जो मुश्किल नजर आता है। शहरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को तालीम के फरोग के लिए मज़ीद इक़दाम के साथ साथ फंड की दस्तयाबी भी यकीनी बनानी चाहिए, ताकि बिजली और टेलीफोन बिल की अदायगी मुमकिन हो सके। कॉलेज में 2000 से ज़ायद तालिबात ज़ेर तालीम हैं। पत्तोकी में फ्री योगा कैंप के ज़ेर एहतमाम सेहत मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, वकला, समाजी शख्सियत समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पत्तोकी में सेहत की अहमियत को उजागर करने के लिए फ्री योगा क्लब के ज़ेर एहतमाम सेहत मेले का इनेकाद हुआ। सेहत मेले में ज़ईफ़ उल उमर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौका पर योगा ट्रेनर नईम तालिब ने शुरा को वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके बताए। खूब वर्जिश करवाई। योगा ट्रेनर नईम तालिब का कहना था, सेहत मेले का बुनियादी मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि वर्जिश करने से मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी मूजी बीमारियों से निजात मिलता है। सुबह सवेरे घरों से निकलें, सैर के साथ वर्जिश करें। बहावलपुर शहर भर में ट्रैफिक सिग्नल न होने से ट्रैफिक के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा।
बेहंगम ट्रैफिक की वजह से रोड ब्लॉक होना मामूल बन गया। ट्रैफिक पुलिस चालान के हद तक महदूद। साजिद जोहेब ने रिपोर्ट तैयार की है। बहावलपुर शहर में हुकूमत की तरफ से ट्रैफिक के निजाम को बेहतर बनाने के लिए लाखों रुपए के बजट ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगाए गए, जो कि कमीशन माफिया के स्पुर्द हो गए। सिग्नल सिर्फ चंद माह ही चल सके। मेरे आने से पहले भी एक इसके मतलब रिपोर्ट बाकायदा भिजवाई जा चुकी है कि जो सिग्नल है वर्क नहीं कर रहे, खराब हुए हैं, पोल गायब है, इनको प्रॉपर ठीक किया जाए। शहर भर में सिर्फ 2-3 मुकामात पर बचे बंद सिग्नल्स पोल ट्रैफिक पुलिस की आला कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। ये सराय की चौक है, यहाँ पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। इस टाइम अगर यहाँ पर कोई मसला कोई होता है तो चालान काटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बड़े परेशान हैं ट्रैफिक की वजह से। लिहाजा हुकूमत पंजाब से हमारी दरख्वास्त है कि हर उसके ऊपर ये सिग्नल लगवाए जाए। जो चौकों पे जो पोल लगे हुए थे वो भी काफी जगहों पे पोल भी उतार लिए गए हैं, और जो हमारी इंतजामिया है उसको चाहिए कि ये जो सिग्नल है इनको फौरन चालू करे। पिछले कुछ अर्सा पहले ये कुछ दिन चले थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये फिर बंद हो गए हैं। ट्रैफिक एहलकारों की तमाम तवज्जो या तो वीआईपी मूवमेंट की तरफ होती है या चालान करके रेवेन्यू जनरेट करने की हद तक, जबकि बहावलपुर से मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली की ट्रैफिक मसाइल के अलावा बाकी पेश आने वाले अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी पर भी सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ साजिद जोहेब, ABN न्यूज़, बहावलपुर। और रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। नौशहरा मिस्री बांडा के इलाके मियां कले में 6 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मिस्री बांडा के इलाके मियां कली में 6 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती हुई। मुबाश मुलजिम ने बच्ची को करीबी खेतों में जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को फौरी तौर पर मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। मकामी पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मानसेरा में किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल में सहूलियात की कमी। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मरीजों को इलाज की बुनियादी सहूलत न मिलने की वजह से एबटाबाद रेफर किया जाने लगा। अस्पतालों में अद्वियात की कमी के बायस मरीज बाहर मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर है। किंग अब्दुल्ला अस्पताल न सिर्फ मानसेरा बल्कि कोहिस्तान, बटग्राम और दोरखर के मरीजों के लिए भी अहम इलाज का है। जरूरी सहूलियात की कमी के बायस अवामी हल्के शदीद परेशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि किंग अब्दुल्ला अस्पताल में अद्वियात की फराहमी के साथ साथ सीटी स्कैन, MRI मशीन और सेहत कार्ड की सहूलत भी फराहम की जाए। खानपुर शहर में डाकखाना और अस्पताल रोड पर नालों, फुटपाथ और शोल्डर की पुख्तगी का काम करने वाला ठेकेदार 2 साल से काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। PTI साबिक हुकूमत में दिसंबर 2022 में खानपुर शहर में 2 करोड़ रुपए की लागत से अंदरूनी शहर डाकखाना और अस्पताल रोड पर नालों, फुटपाथ और शोल्डर की पुख्तगी का काम किया गया। 2 साल गुजरने के बावजूद रोड का काम मुकम्मल न हो सका। रोड के शोल्डर मुकम्मल न होने की वजह से कच्ची जगह पर सब्जी और फ्रूट फरोशों ने कब्जा करके अपने ठेले काम कर लिए, जिसके बायस अवाम को चलने में मुश्किलात का सामना। खानपुर के अवामी और समामी हलकों ने हल्के के MP और सूबाई वजीर बल्दियात अरशद अजूब खान से मुतालबा कर दिया कि मज़कूरा काम करने वाले कंपनी के ठेकेदार और महकमे सिविल वर्क्स के हुकाम को रोड के शोल्डर के बाकी मांदा काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी जाए। अपर कोहिस्तान का सबसे बड़ा और वाहिद अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पिछले 1 हफ्ते से बंद। गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को निदा पाकिस्तान नामी NGO को ठेके पर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पिछले 6 माह से डॉक्टर और दीगर स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से अस्पताल के अमले ने एहतजाजन अस्पताल को बंद कर दिया। सिर्फ इमरजेंसी काम कर रही है, मरीज रुल गए, लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। अस्पताल में दीगर सहूलियात के साथ साथ डॉक्टर्स और स्टाफ का भी फुकदान है। जिला मालाकंड में ट्रांसफार्मर चोरों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नूर शेर खान महमद ने विलेज काउंसिल के चेयरमैनों के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। जिला मालाकंड की तहसील बटखेला में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नूर शेर खान महमद ने तमाम विलेज काउंसिल के चेयरमैन से अपील की कि वो मुतल्लिका थानों के साथ ताउन करें, चोरों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। चोर रात के अंधेरों का फायदा उठाकर ट्रांसफार्मर से सारा तांबा निकाल कर ले जाते हैं। तमाम विलेज काउंसिल के चेयरमैन ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया और इलाके में चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ओगी में पुलिस एहलकार को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से एक राहगीर भी शदीद जख्मी हो गया। फायरिंग का वाकया ओगी बाजार में तौहीद रोड पर पेश आया, जब मुसल्लह मुलजिमान ने मानसेरा पुलिस के एहलकार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार मौका पर जाँ भाग। फायरिंग की जद में बाजार में खरीदारी में मसरूफ यूसुफ नामी नौजवान भी आया और शदीद जख्मी हो गया।
वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कैटेगरी डी अस्पताल उगी मुंतकिल कर दी। चित्राल की अवाम ने हुकूमती गफलत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी मदद आपके तहत रास्ते की मुरम्मत शुरू कर दी। दरियाई कटाव से चित्राल के 2 अजला का वाहिद रास्ता 6 माह से खराब। चित्राल की अवाम ने हुकूमती गफलत और बेहिसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी मदद आपके तहत अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। राशन के मकाम पर दरियाई कटाव की वजह से चित्राल के 2 अजला को मिलाने वाला वाहिद रास्ता 6 महीने कबल खराब हो गया, जिसके बाद कई हादसा पेश आए। अवाम ने बार बार हुकूमती इदारों से दरख्वास्त की, कमेटियां बनाई और करारदादें पेश की, मगर हुकूमती सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश रही। चित्राल की अवाम ने दफातर के दरवाजे खटखटाए, एहतजाज किया, हत्ता के भूख हड़ताल की, मगर हुकूमत पर इसका कोई असर न हुआ। वनू में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुश्क मेवाजात, मछली, सूप और यखनी की मांग बढ़ गई। आपको बताएं, मुल्क भर में महंगाई की लहर, जिसके बावजूद सर्दी की आमद होते ही वनू के बाजारों में न सिर्फ सूप और यखनी की दुकानों बल्कि खुश्क मेवाजात और मछली फरोशों की दुकानों पर रश बढ़ गया। कसीर तादाद में शहरियों ने सूप की दुकानों, मछलियों की दुकानों, ढाबों और रेडियो समेत खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए वनू के अवाम ने बाजारों का रुख कर लिया। रुस्तम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एजुकेशनल एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील रुस्तम से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन तालीम, साफी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाका भर के तलबा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया में तरक्की तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। मुल्क के तमाम वसाइल की गफलत तलबा की अवलीन जिम्मेदारी है। मुआशरे में अमन ओमान का क़याम आला तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। तालीम के जरिए तलबा के अंदर छुपे सलाहियतों को बाहर निकाल कर मुआशरे की तामीर और तरक्की का सबब बनाया जा सकता है। तलबा तालीम शऊर के लिए हासिल करें, ना कि सिर्फ नौकरी के लिए, ताकि असल मानों में तालीम हासिल करने का हक अदा कर सके। रटा सिस्टम ने तलबा को बुर्दबारी की वो तरफ धकेल दिया। मुताला रिसर्च का नाम है और रिसर्च के जरिए तलबा तालीम के मैदान में आगे जा सकते हैं। हुकूमतों को हर साल निसाब तालीम में नए रिसर्च के लिए तब्दीली लानी चाहिए, ताकि तलबा मौजूदा दौर के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। नौशहरा फिरोज के इलाके मोरो कौमी 4 मील के मकाम पर ट्रॉलर और वैन में तसादुम। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। जख्मियों में एक बच्ची दम तोड़ गई, जबकि 15 अफराद जख्मी हैं। मोरो कौमी शराह पर ट्रॉलर और मुसाफिर वैन के तसादुम में 8 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 5 मर्द, 1 औरत और 2 बच्चियां शामिल। जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक होने के बाद 10 अफराद को नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार अफराद तिगर बरादरी से ताल्लुक रखते थे और हैदराबाद में रिश्तेदार की शादी से वापस नौशहरा फिरोज आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक ट्रैवलर को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। हादसे में जाँ बहक होने वाले 8 अफराद की लाशें गांव फाजिल तिगर पहुंचा दी गईं। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो वहीं गर्म कड़ाही वाला दूध, जिसे जलेबी और खुश्क मेवाजात डालकर तैयार किया जाता है, शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। शहरी शौक से पैक कर खूब लुत्फानंदोज होते हैं। मजीद जानते हैं अब्बास अली वाहिद से। अब्बास बताएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, तो वहीं सर्दी के हवाले से जो है वो हैदराबाद की एक दुकान पर दूध तैयार किया जा रहा है, जिसमें ड्राई फ्रूट, इमरती, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें डाली जा रही हैं, जिसे शहरी बहुत शौक से पी रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मालिक जो है वो मौजूद है। अच्छा, कि असल में ये है कि सर्दी है और सर्दी के लिहाज से जो एक चीज न्यू चीज एक आ गई कि इमरती वाला दूध, कढ़ाई वाला दूध, और हमने इसमें न्यू चीज मारूफ करवाई गई है कि इसमें ड्राई फ्रूट वाला दूध पाएंगे। माशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट होता है, काजू, बादाम, इंजीर, इमरती, सब चीजें होती हैं इन चीजों में। और देसी घी, असली देसी घी में ये इमरती भी होती है, प्योर देसी घी भी होता है इसमें डाल के, तो माशाल्लाह लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो दुकान के मालिक, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही बताना है कि इस दूध को कढ़ाई वाले को मुख्तलिफ अंदाज में और जो है वो खूबसूरती से तैयार किया जाता है, जिसे लोग बहुत शौक से पीते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रात के औकात भी जो है यहाँ पर शहरियों को काफी रश है और खूब दूध से जो है वो लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, सांगड़ में 250 इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें 100 जोड़े मुस्लिम कम्युनिटी के, 100 जोड़े हिंदू कम्युनिटी के और 50 जोड़े क्रिश्चियन कम्युनिटी के शामिल थे। हर जोड़े को 1 लाख रुपए तक का सामान जहेज की सूरत में दिया गया। जावेद रफीक ने रिपोर्ट तैयार की है। सांगड़ के इलाके टंडोआदम के नज़दीक निजी वेलफेयर की जानिब से 250 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें 100 जोड़े मुस्लिम और 100 जोड़े हिंदू कम्युनिटी के और 50 जोड़े ईसाई कम्युनिटी के शामिल थे। इस मौके पर वेलफेयर इंतजामिया और प्रोग्राम में शामिल जोड़ों के वुस्सा का कहना था कि आज जो ये प्रोग्राम है 250 इज्तिमाई शादियों का, जिसमें के 100 मुस्लिम, 100 गैर मुस्लिम और 50 क्रिश्चियन,
तो हमारा जो लोगो है वो है खिदमत रब के लिए, खिदमत सब के लिए। यहाँ पर जो है जो भी जोड़े आ रहे हैं उनको तकरीबन 1,10,000 का जो जहेज दिया जा रहा है बराबरी के बेस पे, जिसमें कि घर के इस्तेमाल की हर चीज मौजूद है। अगर इस तरह के प्रोग्राम सरकारी सतह पर मुनक्किद किए जाएं तो गरीब और मतवसत तबके की मुश्किलात कम करने में अहम संगे मील साबित हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा जावेद रफीक, बसरा, ABN न्यूज, सांगड़। अब रुख करेंगे सूबा बलूचिस्तान का। हरनाई में बिजली की लोड शेडिंग, ट्रिपिंग, आंख मचोली और वोल्टेज के मसाल के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। शहरियों की बड़ी तादाद ग्रिड स्टेशन के अंदर दाखिल हो गई। हालात को कंट्रोल करने के लिए ग्रिड स्टेशन इंतजामिया ने पुलिस की नफरी तलब कर ली। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि वो बिजली की तवील लोड शेडिंग खत्म होने तक ग्रिड स्टेशन के अंदर एहतजाज जारी रखेंगे। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तवील लोड शेडिंग खत्म की जाए और कम वोल्टेज के मसले को हल किया जाए। अब रुख करेंगे कश्मीर का। ख्वाजा आलिम रहमतुल्लाह अलैह के 16वें सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। आपको बताएं, ख्वाजा आलिम के 16वें सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर मुंतज़मीन आला काजी मोहम्मद रफ़ीक ने मेंबरान रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सालाना ख़त्म शरीफ में पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बैरून मुमालिक से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन शिरकत करते हैं। दुआ 31 दिसंबर को होगी। इंतजामिया के ताउन से बड़ी तादाद में कमेटियां तश्कील दे दी गई। सालाना ख़त्म शरीफ के मौके पर जिला भक्कर में 31 दिसंबर को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी और तमाम इदारे बंद रहेंगे। खड़ी शरीफ आज़ाद कश्मीर में अहम तालीमी मरकज अफजलपुर के रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आपको बताएं, साबिक नून लीगी दौर में रोड की तामीर पर काम शुरू हुआ मगर उसे मुकम्मल न किया जा सका, जिसकी बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। अवामी और समाजी हलकों का हुकूमत से मुतालबा कि अफजलपुर रोड की खस्ता हाली को फिलफौर खत्म किया जाए। अंजुमन ताजरान की तकरीब हल्फ बर्दारी में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत शौकत नवाज मीर और दीगर साथियों का रेड पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अंजुमन ताजरान रेड की नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया गया। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी को वार्ड्स की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाए। अवामी हुकूक की ये तहरीक जारी रहेगी। मुकर्रीन ने मजीद कहा, हुक्मरान एक मुनज़्ज़म तहरीक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा इत्तेहाद ही इसकी कामयाबी का ज़ामिन है। पानियोला में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम सर्वे में हकदार हक से महरूम हो गए। माजूर नाबीना अफराद सरापा एहतजाज सड़कों पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत जमा करवाई गई 1,19,000 दरख्वास्तों पर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद सामने आने वाली फहरिस्तों में रियासत भर के इंतहाई 99% मुस्तहिकीन को नजरअंदाज कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है, हमें इस हक से महरूम रखा गया। हमारे साथ हर बार ज्यादती की जाती है। NTS पास करने के बावजूद हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों को मुलाजमत से महरूम किया गया। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। 1,10,000 दरख्वास्तों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और ऐसी बेवगान और बुजुर्ग अफराद के नाम मुस्तफीद कुनिंदगान में डाल दिए गए। हमारा मुतालबा है असर 9 दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करके हकदारों को हक दिया जाए। SP मीरपुर खावर अली शौकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात बताते हुए कहा, पुलिस ने डकैती के बैनर सूबाई गिरोह को गिरफ्तार करके उनसे लूटी गई रकम बरामद कर ली। मंशियात के 19 मुकदमात दर्ज हुए। 34 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं, उनके कब्जे से 5 किलो चर्स, आइस और शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद की गई। खैबर पख्तूनख्वा से असला गैर कानूनी लेकर आने वाले 2 मुल्जिमान को उनकी निशानदही पर मीरपुर से एक असला डीलर को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। SSP का कहना था, जराइम की रोकथाम के लिए जिला भर में 700 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी सख्त कर दी गई। बलोच आजाद कश्मीर में जंगली हिरन आबादी में घुस आया। मकामी लोगों ने कुत्तों की मदद से हिरन को मार डाला। वाकई की इत्तला मिलते ही महकमे वाइल्ड लाइफ का अमला सुपरवाइजर कामरान बशीर, महकमे जंगलात का अमला राना राशिद की क़यादत में मौका पर पहुंच गया और शिकार किए गए हिरन की खाल बरामद कर ली, जिसके बाद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। ज़राए के मुताबिक दूसरे जंगली जानवर भी आबादी में आ गए थे। कुत्तों के हमला करने पर जान बचाकर भाग गए। जिले सदर PTI निसार अहमद मलिक ने कहा कि तालीम की तरक्की से ही इनकलाब आ सकता है। तमाम तरक्की याफ्ता अक़वाम ने तालीम की बदौलत तरक्की की मनाजिल को तय किया। इंसान की कामयाबी के लिए भी मेहनत और लगन जरूरी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कदीमी इदारे तथा पानी में सालाना यौम वालदैन की पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए किया।
तलबा और तलबात ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके तकरीब के लिए रौनक बाला कर दी। हवेली कोहटा में अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी ग्रैंड शटर डाउन हड़ताल जारी, जिसमें हवेली के तमाम मकातब फिक्र ने शिरकत की। इजलास में अहबाब की तजवीज़ के बाद मुश्तरका तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया। चार्टर ऑफ डिमांड में 10 अहम मुतालबात शामिल हैं। ग्रिड स्टेशन जल्द से जल्द तामीर किया जाए, DHQ हवेली को मुकम्मल फंक्शन किया जाए, तहसील हेडक्वार्टर खुर्शीदाबाद का क़याम अमल में लाया जाए। डोडियाल पुलिस ने ढान गली में चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान अहम कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए मुश्तबा अफराद की तलाशी ली गई, जिसके दौरान 1 किलोग्राम मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार होने वाले अफराद का ताल्लुक मंशियात फरोश गैंग से है, जो इलाके में गैर कानूनी मंशियात की फराहमी में मुलव्विस थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मज़ीद तफ्तीश जारी है।